Hello and the heartiest welcome to my channel, CA Aspirant Neha Jha. So, as the name suggests, that I am an aspiring CA and I'm at the final level. And also, I have been teaching from past 2 years, and the first important subject that I've been teaching is English. And the first motive of me starting this channel is also only this, that I want to make you all comfortable with this language and just make you all know that we can be comfortable in speaking this language. And whatever ways I have tried, I want to express those things to you, and also want you to implement those ways and those methods by which you can start learning this language, which is English. So here I am starting with the 5 easiest ways of learning English. Okay, so the first important way that I have been, and firstly I want to tell you all that this is the one thing that we all from vernacular medium feel, that as we are not that familiar with this language, so we will not be able to speak. And even if we want to, then how can we start? This is the question that we all have. And so just to let you all know that I am also from from a Hindi medium background, and I have been teaching this language from past 2 years, which says it all, that no matter from which medium you are, be it Hindi or any other vernacular medium, you can learn anything if you have that passion in you. Okay, because I had that passion in me, that I want to learn this language, I want to learn new words, find their meanings and use them in my daily life. So here I am with all the confidence speaking, and just meeting people and speaking with all my confidence. So I am here to tell you all those 5 easiest ways through which you can start learning this language. The first thing that you need to do is start reading, because before learning any language you need to be comfortable with that language, that okay, these are the words and this is how they are pronounced. So you need to first start reading. Read any book. Okay, it need not be only English book, it can be any other history or any other book in which contains English language. So you need to first start reading, so that you will be able to just decipher what the words are and what their pronunciation is. And if you can't speak something, just Google it, whatever the word is, that how is it even pronounced. Okay, you can write the word and the Google speaker says it all, that how it is pronounced. Okay, so first you need to start reading, so that you can be fluent in this language. So you need to invest at least 15 minutes of your daily life into reading this language from any book. Okay, any book, newspaper and magazine, be it anything. So the first thing is what reading. Okay, so whenever you will start reading, you will be able to get the confidence that okay, this is how I can speak, or these are the pronunciations. The second thing is you need to start learning tense. Why? Because this is the first and the most basic thing that we are taught whenever we start learning this language. Because as you must be remembering, that when we were in 5th or 6th standard, the first thing that our teachers used to make us understand was tense, because this is the most basic grammar, and this is what I also teach to my students. And why? Because tense includes everything. I mean, it is a foundation of any of learning this language, of building sentences in English. Why? Because if you don't know that in which tense you want to speak, then you won't know what will be the helping verb and main verb of that particular tense. So you need to first know that okay, I want to speak in this particular tense, and then when you know that yes, I want to speak in present continuous, past continuous, then you will be able to know that what is the helping verb, what is the main verb. Because see, what happens whenever you see a person talking, जो भी चाहे वो ऐसे ही बोल रहा है कि ओके, उसको बोलना क्या है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर रहा था, लेकिन वो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? जो बस ऐसे ही बोल दे, तो वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में कि आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग? क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो पास्ट कंटिन्यूस से बोलना चाहता है, और अगर पास्ट कंटिन्यूस से बोलना है इसे, तो उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होता है. तो ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए हमें.
जो कि हमें टेंस से पता चलेगा। तो सेकंड चीज़ आपको ये करनी है कि स्टार्टिंग से लेकर वो बेसिक चीज़ें आपको टेंस सीखना है। एंड डोंट वरी अबाउट दैट कि वो पूरा चार्ट कैसे मिलेगा, एंड यू नो उसका एकदम बेसिक सी चीज़ है कि उस टेंस में आपको उसको हिंदी में क्या बोलना है। ओके, तो मैं उसके लिए भी द नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर टेंसेज, जो कि मैं डालूंगी, एंड दैट विल बी होल, जिसमें सब कुछ रहेगा, बेसिक सी चीज़ें रहेंगी कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा अगर कोई बोल रहा है पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसका मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी उसी का रहेगा। सो येस, द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ वॉट कि आपको टेंसेज सीखना है और आपको वो चीज़ें याद भी करनी है। थर्ड क्या होगा, तो थर्ड चीज़ आपको ये करनी है कि जैसे ही आप टेंसेज सीखोगे ना, तो उसके बाद आपको डेली कम से कम 5 सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, ट्रांसलेट करने हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो जाता है कि क्योंकि हम डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं बोल पाते, नोबडी इज़ एबल टू स्पीक इन इंग्लिश डायरेक्टली। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको जो भी बोलना है हिंदी में तो आपको पता ही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि राइट फर्स्ट इन हिंदी एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, और वो आप ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो वो भी आपको पता चलेगा जब आपको टेंस आ जाएगा कि अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब लगता है, पहले सब्जेक्ट लगता है। तो उससे आप क्या करोगे ना, ये बिगिनर्स के लिए हो जाता है कि अच्छा मुझे सेंटेंसेस फॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक वो पिक्चर आते जाएगा कि ओके इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कि थर्ड स्टेप कि आपको रोज़ कम से कम 5 सेंटेंसेस, और वो 5 सेंटेंसेस कोई भी होने दो, इट डजंट नीड टू बी एनी स्पेसिफिक सेंटेंसेस, जो आप डेली लाइफ में बोलते हो वही सेंटेंसेस आप क्या करो कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। फोर्थ इज वॉट कि जैसे ही आप ट्रांसलेट करना चालू करो, ये सब क्या है ना कि ये एक के बाद एक ही आपको करना पड़ेगा, कि जैसे ही आप उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करोगे ना, और लिख कर हो जाए तो ये करो, क्योंकि आप डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो, तो उन सेंटेंसेस को आप फिर बोलना भी स्टार्ट करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में, और यू नीड नॉट फील शाय। ओके, कि सामने वाला क्या बोलेगा और व्हाट विल देयर रिएक्शंस विल बी, क्योंकि अगर आप यही सोचते रह जाओगे ना तो फिर यू वोंट बी एबल टू स्पीक। तो यही बात है कि जैसे ही आप लिखोगे, उस लिखने के बाद आप बोलना चालू करो जो भी 5 सेंटेंसेस है। ठीक है, तो जैसे ही वो आप 3 से 4 दिन भी अगर आपने वो कंटिन्यूसली बोल लिया ना, फिर जो चीज़ आप बुक में कर रहे हो ना कि ट्रांसलेट करना है, वो अब आप अपने माइंड में करने लगोगे। यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल दोज ट्रांसलेशंस इन योर माइंड। और मैंने ये खुद पर्सनली किया हुआ है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो आई यूज्ड टू डू व्हाट कि मैं हिंदी में लिख लेती कोई भी सेंटेंसेस को, बिकॉज आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो मैं क्या कर लेती थी कि हिंदी में लिखती थी एंड देन आई यूज्ड टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। और जो भी मुझे नहीं आता था, मैं खुद से सब कुछ नहीं कर लेती थी, तो जो भी मुझे नहीं आता था कि हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखो, आई यूज्ड टू आस्क माय टीचर, और उस तरीके से फिर उसी टीचर के पास जाके आई यूज्ड टू स्पीक कि मैम ये है। तो वो फिर क्या हो जाता है ना कि वो हैबिट बन जाती है। तो जो हम फिर बुक में करने लगते हैं, नाउ आई डू दोज थिंग्स इन माई माइंड कि ट्रांसलेशन कैसे होगा। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये करना है आपको कि लिखने के बाद आपको खुद को बोलना स्टार्ट करना है। फिफ्थ एंड ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने मन से वो डर ही निकाल देना है दैट लोग क्या बोलेंगे, राइट। कि मतलब कोई हंसेगा अगर आप इंग्लिश में कुछ गलत बोल दोगे तो, या फिर सामने वाले को कोई कुछ भी कि पता नहीं क्या बोलेंगे लोग। कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा। ओके, क्योंकि हर एक का टैलेंट अलग अलग होता है, दे आर यूनिक इन देयर ओन वेज। तो आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं गलत बोल दिया मैंने तो सामने वाला हंसेगा, लेट देम लाफ। जब भी आपको ये डर लगे ना कि मैं इंग्लिश बोलूँगी तो सामने वाला हंसेगा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि यू शुड बी हैप्पी टू बी द रीज़न ऑफ समवन स्माइल। ठीक है, इवन इफ समवन इज लाफिंग एट यू, बी हैप्पी कि कोई हंस रहा है आपकी वजह से। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये डर अपने मन से निकाल दो, ये इनहेबिटेशन, हिचकिचाहट अपने मन से निकाल दो कि आपको कोई हंसेगा आपके ऊपर, तो वो स्टार्ट करो बोलना। ठीक है, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें, कितना टाइम लगता है ये सब करने में, 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। तो जैसे ही आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप ऐसा लगेगा कि आपको खुद को करने का मन हो रहा है। ठीक है, तो वो पैशन भी होना चाहिए कि इंसान में कि हाँ मुझे सीखना है, तो ही वो आप कुछ कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स।
कम आफ्टर 15 days अगेन हियर, और अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा इसका रिव्यू लगा और कैसे आपको कि आप में इम्प्रूवमेंट दिखा, और वो देखने मिलेगा डेफिनेटली। और जो भी डाउट्स है कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे या वॉट एवर, हालांकि मैं उसके रिलेटेड वीडियोस भी इसके बाद अपलोड करूंगी, बट इवन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स राइट नाउ, तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो वो भी मैं आपको डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट टेंसेस विच आई mentioned earlier. So do like the video if you liked it, and subscribe to the channel if you want more videos like this on how to speak English and how to just start from basics. Okay, and if you want to learn all the grammars of English, be it tenses, indirect speech or voices, and any kind of grammar, I'll be uploading one after another videos. So do subscribe to the channel, share to your friends and families, so that they can also just get an idea on how to start learning this language. Thank you so much.